Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue your class 12th history, chapter Kings and Chronicles. Class 12th history, chapter Kings and Chronicles. My dear, if you have remember my previous class, where I was discussed about Akbar drama, Babur drama, and their importance. We also discussed about the printing images. Printing images, this images also explain the various important points about Mughal imperial rule. My dear, this is very strange matter that Hamjanama, Rajnama, these were the paintings book in which the large painting and images were compiled by the painters who were appointed by the Mughal rulers in their Mughal court. Dear, today we will try to understand the next topic, the ideal kingdom. The ideal kingdom. First we will read your book and then after I will explain the ideal kingdom properly. Okay, let us come and try to understand the ideal kingdom. The court, the chronicles drew upon many sources to show that the power of the Mughal kings came directly from God. One of the legends they narrated was that of Mongol queen Elan Kumar. Mongol queen Elan Kumar. Okay, this is also mentioned in your book. Elan Kumar, she was Mongol queen. The Muslim rulers, they tried to prove that the rulers who were directly connected with the supreme authority, I mean to say that God. So they narrated, so they used the traditional story, so they linked them with the religious personalities, spiritual personalities. Okay? The Mongol queen Elan Kumar, who was impregnated by a ray of sunshine. Impregnated. Impregnated by sunrays, सूर्य की किरणों से वो क्या हुई? प्रेग्नेंट हुई। कौन? मंगोल राजकुमारी एलान कुमार। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो क्या बना? मंगोल। ओके, अब मंगोल रूलर्स की इस स्टोरी से मुगलों ने
अपने को कैसे कनेक्ट किया? बिकॉज मंगोल्स Qutulub Nigar Khan, she was mother of Babur. Okay? She was mother of Babur. Qutulub Nigar Khan was the fourth generation of Mongol rulers. Qutulub Nigar Khan was the 14th generation of Mongol rulers. So, with the help of this story, Mughal tried to prove that they were directly connected with the sun, they were directly connected with the God. भगवान से वो कनेक्टेड है, इसीलिए उन्होंने इस स्टोरी का सहारा लिया. सेकेंड थिंग विच इज गिवन हियर, द पॉइंट इज दैट the sun sign while resting in her tent, the offspring the boar carried this divine light and passed it on from generation to generation. Abul Fazl placed Mughal kingship as the highest station in the hierarchy of object, receiving light emanating from God for Rajdi. For Rajdi. For Rajdi. It means divine light. It was mentioned by Abul Fazl. ये किसके द्वारा कहा है? अबुल फजल के द्वारा. फर्र इजदी की बात की जाती है. कहता है कि जो मुगल रूलर्स हैं वो फर्र इजदी है, दैवीय प्रकाश के बिंदु है, दैवीय प्रकाश उनके अंदर है, डिवाइन लाइट उनके अंदर है, और इन चीजों के आधार पे वो उसकी व्याख्या करते हैं. My dear, what I want to tell you that Abul Fazl placed Mughal kingship as the highest station in the hierarchy of object, receiving light emanating from God for Rajdi. Here he was inspired by the famous Iranian Sufi Shihabuddin Sohrawardi, who first developed this idea. According to this idea, there was a hierarchy in which the divine light was transmitted to the king, who then became the source of spiritual guidance for his subject. My dear, this idea, or the idea, was given by first time Shihabuddin Sohrawardi. Okay, Shihabuddin Sohrawardi, he was Sufi saint. He found first time what the Sufi sect India, Shihabuddin Sohrawardi. इन्होंने भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की. सूफी संप्रदाय में जो सोहरावर्दी संप्रदाय थी उसकी स्थापना इन्होंने की, और फिर यहीं से एक कॉन्सेप्ट इनका आया. उन्होंने कहा कि जो गॉड होता है उसके अंदर भगवान की दिव्य प्रकाश सम्मिलित है, भगवान के दिव्य प्रकाश से वो बना हुआ है, अल्लाह का दिव्य प्रकाश उनके अंदर है, और फिर वो इसी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. तो दो चीजें हमको मिली. माय डियर,
What I want to tell you, I hope you are getting understand. The point is that the true traditional story, we have of that Mughal ruler proved that they were direct connected with the God. They were direct connected with the particular supreme authority, the spiritual authority. How can they say? They use the story, the Mongol princess Alan Kuan. The Mongol princess Alan Kuan. And second traditional story that was taken by Siyamuddin Sohrawardi, where he mentioned that for entity, it means divine light, it comes from, transformed from God to king and king to generation, the other kings. This is very clear. This is explained by the Islamic spiritual leaders time to time. Abul Fazl also used this for Rajdi for their Mughal rulers. Abul Fazl ने for Rajdi में मुगल रूलर के इस कंसेप्ट को एडॉप्ट कर लिया। उसने कहा, इसीलिए वो अकबर को क्या कहता है? अबुल फजल अकबर को कहते हैं इंसान कामिल, इंसान कामिल, साहिब जमाना, साहिब जमाना. This title was used by Abul Fazl for whom? For Akbar. Okay? Abul Fazl tried to propagate the Akbar quality that he is a divine person. In his, it means in the Akbar character, some spiritual power. On the behalf of this story, we try to, I hope you are getting understand what I want to tell you. My dear, this is very easy, and the explanation where I am giving it is also the very easy one. My dear, अगर आप आसानी से समझना चाहें इसको, तो क्लियरली कहता है कि दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का सहारा लिया, कई साक्ष्य का हवाला देते हुए ये दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। उनके द्वारा वर्णित जो दंत कथाएं हैं, जो मैथड्स हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरी है, उसमें एक मंगोल रानी अलान कुआं की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते हुए सूर्य के एक किरण के द्वारा, सनरेज के द्वारा गर्भवती हो गई। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश स्थानांतरित होती रही। क्यों? क्योंकि बाबर की मदर कुतुब निगार खान मंगोल राजकुमारी थी, मंगोल वंश से थी। तो फिर ये थ्योरी, इन थ्योरी के आधार पे क्या कहा गया कि वो मंगोल राजकुमारी हैं, और उनको चूंकि सनरेज से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर डिवाइन पावर थी। अब यहीं पे फर्रे इजदी, ईश्वर से निकला हुआ प्रकाश, फर्रे इजदी, ईश्वर से निकला हुआ प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के हायरकल फॉर्म में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचा स्थान रखा। इस विषय में प्रसिद्ध ईरानी सूफी सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी 1191 में इनकी मृत्यु हुई थी, वो के विचारों से अबुल फजल प्रभावित थे। इसमें सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया गया था कि जो हायरकल फॉर्म है उसमें दैवीय प्रकाश राजा से, एक राजा से दूसरी राजा और दूसरे राजा से तीसरे राजा में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। जो क्रॉनिकल्स हैं, क्रॉनिकल्स के विवरणों का भी यदि हम सहारा लें तो उसमें भी राजा को दैवीय प्रकाश के साथ दिखाया गया है। पेंटिंग्स विच इज गिवन इन योर बुक, पेंटिंग्स विच इज गिवन इन योर बुक, जहांगीर पेंटिंग बुक में देखिए, जहांगीर की पेंटिंग, वहां पे आपको इसके बारे में दिखेगा। एक्सेप्ट द अदर पेंटिंग 9.5 को भी देखिए। इन क्रॉनिकल्स में
चित्रों के विचार इस तरीके से प्रेषित किए गए, इस तरीके से दिखाए गए हैं कि आप इनके आधार पर भी इन बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें 9.5 पेंटिंग्स को, तो वहाँ पे अकबर की पोशाक सफ़ेद है और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए, सफ़ेद रंग को सूफी परंपराओं से संबंध करा गया है, जोड़ा गया है। वह एक गोलक अर्पित कर रहा है, एक गोला दे रहा है, मतलब एक गोल सी कोई वस्तु राजा को दे रहा है। ओके, मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राजवंशी परिवर्तन का निर्णय भ्रातृघातक युद्ध से होने लगा। अकबर के शासन के अंतिम भाग में शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में अकबर ने उसे माफ कर दिया था। इस पेंटिंग से इस सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। डियर, द पेंटिंग दैट accompanied the narrative of the chronicles transmitted these ideals in a way that left a lasting impression on the mind of viewers. Mughal artists from the 17th century onward began to portray emperors wearing the halo which they saw on European paintings of cherished and the Virgin Mary to symbolic the light of God. Here I told you two stories. One, I mean to say that here I discussed the major point of this topic. First point is that in the first peak 9.5, where 9.5, the paintings by Abul Hassan shows Jahangir dressed in the resplendent the cloths and jewels, holding up a portrait of his father Akbar. Akbar is dressed in white, associated the Sufi tradition with the enlightened and Sufi. He proffers a globe symbolic of the dynastic authority. I mean to say that Akbar, he given a globe. What? It is the symbolic authority. किसको? To their son, अपने पुत्र को, जहांगीर को। यही मैंने कहा कि अकबर सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सूफी के कलर का। सफ़ेद रंग सूफी परंपराओं से संबंधित है, उनसे जुड़ा गया है। और वो एक क्या दे रहे हैं? एक गोल सी कोई चीज़ है जो जहांगीर को वो दे रहे हैं। ये राजवंशी सत्ता का प्रतीक है। ये जो गोल चीज़ है, ये वर्ल्ड, ये पृथ्वी का शासन, पृथ्वी के शासन के रूप में वो चीज़ें उन्हें सौंप रहे हैं। मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। इसीलिए एक सिंबॉलिक रूप में जहांगीर ने इस पोर्ट्रेट को बनवाया, जिसमें अकबर उन्हें कुछ चीज़ देते हुए दिखाए गए। अब आप पॉइंट्स पे आइए, जिसको मैंने अभी कहा, मैंने आपको बताया था। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल पैराग्राफ। 5.1, the ideal kingdom, a divine light. In this topic, it is very clear that the Muslim scholars, they try to prove that king, the ruler, has some divine power. He was I mean to say that deputy of God कह लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए अबुल फजल ने क्या लिखा? अबुल फजल ने अकबर के लिए एक टाइटल लिखी। उन्होंने अबुल फजल को बोला कि ये क्या है? वो इंसान कामिल है, साहिब जमाना है। अबुल फजल ने अकबर के बारे में ये डिटेल्स की। ओके, सो माय डियर, द मुस्लिम स्कॉलर्स, they always try to prove that Akbar and Mughal rulers, they have some divine power. They were ancestor of, I mean to say that the God. एक वर्ड है, नियामत खुदाई, नियामत खुदाई। आपको मैं यहाँ लिखता हूँ।
नियामते खुदाई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नियामते खुदाई? नियामते खुदाई मीन्स ईश्वर की परछाई। शासक क्या है? शासक ईश्वर की परछाई है, ये बात अबुल फजल कहते हैं। आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि राजा को किस रूप में लेखक, कोर्ट पोएट, कोर्ट राइटर दिखाना चाहता है। तीन चीजों को जिक्र मैंने किया है, तीन बातें मैंने की। अगर मैं इन सबको मिटा दूं, तीन वर्ड को लिखो, ओके, तीन वर्ड, ओके, तीन वर्ड के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि व्हाट दे वांट टू प्रूव। फर्स्ट, दैट वाज अलान कुराज स्टोरी। सेकेंड, सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। Sihabuddin Sohrawardi, for Rajini, and third point Abul Fazl. Abul Fazl, he what? He entitled our Niyamte Khudai. It means shadow of God. नियामते खुदाई, इंसानी कामिल, साहिब जमाना। On the behalf of these points, you can easily prove that what the Muslim scholar wanted. Okay? यही कहता है कि जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वो यही प्रूफ करना चाहते हैं कि राजा के अंदर दैवीय गुण थे, और इसको उन्होंने चित्रों के माध्यम से भी, इसको उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया। वो जब कहते हैं कि पेंटिंग्स 9.5 की, जिसकी मैंने बात की, 9.5 की पेंटिंग को आप देखें तो 9.5 में देखिए कि क्या स्थायी प्रभाव डाल रहा है ये पेंटिंग्स। 17वीं सेंचुरी में मुगल कलाकारों ने बादशाहों के प्रभामंडल के साथ चित्रित किया। ये ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में प्रभामंडल उन्होंने ईसा और वर्जिन मैरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। इफ यू विल सी फिगर 9.5, एक चित्र बने हुए हैं। सपोज एक चित्र है, इसके पीछे एक प्रभामंडल है, पीछे का एक दैवीय प्रकाश। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे टीवी सीरियल्स आते हैं, उस टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि सूर्य देवता आते हैं और सूर्य देवता के पीछे एक बड़ा सा क्या होता है, प्रभामंडल होता है, चक्र लगाता है। आप देखते होंगे, ऐसा लगता है कोई पहिया पीछे घूम रहा है। दैट इज प्रभामंडल। वो जो प्रकाश का दिव्य स्वरूप है वो पीछे दिखाई देता है। तो राजाओं के साथ इन चीज़ों को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था कि राजा के दैवीय गुणों का आरोपण कर देना, राजा के अंदर दैवीयता का आरोपण कर देना। ओके, तो इन चीज़ों के साथ यदि आप इसको देखेंगे तो ये आप टॉपिक ऑफ द आइडियल किंगडम एंड द डिवाइन लाइट को आसानी से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। द टॉपिक इज, आई थिंक, लेट मी सी द टॉपिक, द unifying forces. Okay, when we will read unifying forces, we can easily understand, we can easily what, इस बात को समझ जाएंगे कि किस तरीके से शासक इन चीज़ों को अपने साथ
राजा की दैवी गुणों को अच्छे से वो दिखा पा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।